السلام علیکم دوستو رمضان میں اگر آپ نے اس نماز کو پڑھ لیا تو آپ کے چاہے جتنے بھی گناہ ہو، پہاڑ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو، چاہے جانے میں ہو گئے ہو چاہے انجانے میں ہو گئے ہو، یا پھر آپ نے کوئی بھول چوک میں گناہ ہو گیا ہو بہت بڑا، تو ان گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ کیونکہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی نماز بتائی کہ اگر بندہ اس نماز کو پڑھ لیتا ہے تو کتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس بندے کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے سارے کے سارے مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے دل کو اتنا زیادہ سکون ملتا ہے کہ دنیا کی کوئی دولت سکون نہیں دے سکتی جو وہ نماز پڑھنے سے سکون مل جاتا ہے۔ جی ہاں، اس نماز کو کہتے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز۔ آج اسی کے بارے میں بات کریں گے، پورا طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سی رکعت میں کون سی سورہ پڑھی جائے گی، کتنی بار پڑھی جائے گی، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، قاعدے میں بیٹھ کے کیا پڑھنا ہے، اور یہ کس وقت میں پڑھی جائے گی، کتنے ٹائم پڑھی جائے گی، ساری بات اس ویڈیو میں آپ کو میں سمجھانے والا ہوں۔ اس نماز کے اندر کل 300 بار ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، وہ تسبیح بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس کو آپ کاپی پین لے کر لکھ لیجیے گا، کیونکہ وہ بار بار وہی پڑھنا ہوتی ہے۔ میں اسکرین شاٹ پہ لگا دوں گا یہاں پر، آپ اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لینا، کیونکہ بار بار آپ کو وہی تسبیح پڑھنی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ پھر یا تو آپ لکھ لینا یا پھر آپ اسکرین شاٹ لے لینا۔ اب ہم اس نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پہلے کچھ حدیث جان لیتے ہیں، اس کے بعد نماز کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس، اگر تم صلاۃ التسبیح کی نماز کو پڑھ لو گے تو اللہ تمہارے پچھلے گناہ جو آپ نے گناہ کر لیے وہ سارے کے سارے گناہ مٹا دے گا، چاہے وہ جانے انجانے میں ہوئے ہو گناہ، یا چھوٹے گناہ ہو یا چھپے گناہ ہو، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسری حدیث سمجھ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہو سکے تو اسے ہر روز پڑھو، اور اگر روز نہ پڑھ سکو تو ہر جمعے کو پڑھو، اگر جمعے کو بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک بار پڑھ لو، اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک بار پڑھ لو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی زندگی میں ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھ لینا۔ اب تیسری حدیث کیا ہے کہ علماء نے فرمایا کہ یہ نماز گناہوں کی معافی اور دل کی صفائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس سے اللہ کی رحمت بندے کی طرف بہت جلدی آ جاتی ہے۔ دیکھیں اس نماز کو پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، دل کو آپ کے سکون ملتا ہے، بہت ہی زیادہ آرام ملتا ہے، اللہ کی رحمت اس بندے کے اوپر ہمیشہ بنی رہتی ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو اس نماز کو پڑھتا ہے۔ اس کی جو بھی مشکلیں ہوتی ہیں، جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، جو بھی دکھ ہوتے ہیں، جو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ بہت جلدی مٹ جاتی ہے، یعنی کہ بہت ان میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اس نماز کو پڑھ کر آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ سے آپ ایک دم اٹیچ ہو جاتے ہیں، اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اور جو بندہ اللہ سے جڑ گیا تو سمجھو اس کی دنیا اور آخرت صبر جاتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس نماز کو کتنی بار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ کس وقت میں پڑھنا ہے۔ پہلے آپ جان لیجئے گا کہ نیت کیسے کرنی ہے آپ کو۔ نیت میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے دکھا دیتا ہوں اور ایک بار پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں، اور آپ اس کو یاد کر لیجئے گا۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف دونوں ہاتھوں کو لے جا کر کہنا ہے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد آپ کو نیت باندھ لینی ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کو لے جا کر باندھ لینا ہے۔ یہ آپ کے سامنے نیت لکھی ہوئی ہے اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا۔ اب جب آپ نے نیت باندھ لی، آپ جا نماز پر کھڑے ہو گئے، اب یہ کس وقت میں پڑھنا ہے وہ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے، پہلے نماز کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ باندھ لیے، نیت بند ہوئی، اب سب سے پہلے آپ کو ایک بار ثنا پڑھنی، یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے لکھ دی، ایک بار ثنا آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد 15 بار آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہوگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طریقے سے اس تسبیح کو آپ 15 بار پڑھیں گے، اور یہ میں نے اسکرین شاٹ اس کا لگا دیا ہے کیونکہ اب یہی آپ کو ہر بار پڑھنی ہے، تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، اس کو آپ دیکھ کر بھی پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جیسے کہ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ ایک بار پڑھ لیجیے گا۔ پھر اس کے بعد آپ ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، جیسے کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ میں نے سورہ اخلاص لگا دی، اس کو ایک بار پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد پھر سے 10 بار آپ کو یہ والی تسبیح پڑھنی جو ابھی آپ نے پڑھی تھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
10 बार इस तस्बीह को पढ़ने के बाद फिर आप लोग रुकू में जाएंगे। रुकू में आपको 3 बार सुबहाना रब्बियल अजीम, जैसे कि हम पढ़ते हैं 3 बार, वही सुबहाना रब्बियल अजीम आपको पढ़नी होगी। फिर रुकू में ही आपको खड़ा नहीं होना है, फिर रुकू में ही आपको फिर से आपको 10 बार वही तस्बीह पढ़नी जो अभी आप पढ़कर आए थे। फिर उसके बाद आप रुकू से खड़े हो जाएं। फिर वहीं पर खड़े होकर फिर से आपको 10 बार वही तस्बीह पढ़नी जो आपकी स्क्रीन पे लगा दी है। ये तस्बीह आपको फिर से 10 बार पढ़नी। मैंने कहा कि इसको सबसे ज्यादा इस नमाज में पढ़ा जाएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लगा दिया है ताकि जल्दी जल्दी में मैं ये वीडियो आपको समझा दूं। 10 बार पढ़ने के बाद फिर आप लोग सजदे में चले जाइएगा और सजदे में जाके आपको सुबहाना रब्बियल आला ये 3 बार आपको पढ़नी होगी। उसके बाद 10 बार फिर से यही तस्बीह आपको पढ़नी जो स्क्रीनशॉट पे लगा दिया। ये 10 बार फिर से रुकू में ही आपको इस तस्बीह को पढ़ना होगा। फिर आप लोग सजदे से उठ जाइएगा। अब दोबारा सजदा नहीं करना, वहीं पर बैठकर सजदा एक हो गया सजदा आपका। दूसरे वाले सजदे के लिए जब आप जाएंगे तो उससे पहले आपको फिर से 10 बार वही वाली तस्बीह जो अभी आपने पढ़ी थी ये तस्बीह आपको फिर से पढ़नी होगी। फिर आप दूसरे सजदे में चले जाएं, फिर से आपको 3 बार ये तस्बीह पढ़नी, सुबहाना रब्बियल आला ये 3 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको 10 बार ये वाली तस्बीह पढ़नी जो स्क्रीनशॉट आपका मैंने लगा दिया है इसकी हिंदी में, इसको फिर से आप 10 बार पढ़ लीजिएगा। अब आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब दूसरी रकात में आपको यहाँ पर सना नहीं पढ़नी है। अब यहाँ पर आपको पढ़ना होगा 15 बार वही तस्बीह, यानी कि जो अभी आप पढ़ कर आए ये वाली तस्बीह 15 बार आपको फिर से पढ़नी होगी। उसके बाद एक बार आप सूरे फातिहा पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपको जो भी कुरान पाक की सूरे याद हो वो सूरे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर सूरे पढ़ने के बाद फिर से आपको 10 बार वही तस्बीह पढ़नी है जो तस्बीह अभी हम आपको बता कर आए थे। ये स्क्रीनशॉट लगवाए, ये वाली तस्बीह आपको फिर से 10 बार पढ़ लेनी होगी। फिर आप रुकू और सजदा पहले की तरह करें। जैसे पहली रकत में हमने आपको रुकू और सजदे में जो जो चीजें बताई थी वो चीजें आप दूसरी रकत में रुकू और सजदे में आपको पढ़नी होंगी। फिर जब रुकू और सजदा आपका दूसरी रकत में कंप्लीट हो जाए तो कायदे में बैठकर आपको एक बार अत्तहियात पढ़नी होगी। फिर आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में जैसे अभी आपने पढ़ा था 15 बार ये वाली तस्बीह जो हिंदी में लिखी हुई है ये तस्बीह आपको पढ़नी होगी। उसके बाद एक बार सूरे फातिहा आपको पढ़नी होगी जो सूरे फातिहा भी आपने पढ़ी थी। उसके बाद कुरान पाक की जो भी सूरे आपको याद हो वो सूरे एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 10 बार फिर से यही तस्बीह आपको पढ़नी होगी 10 बार। जैसे अभी आप रुकू और सजदे में अभी पढ़कर आए वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी रुकू और सजदे में आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चौथी रकात के लिए आप जब खड़े हो जाएंगे ना तो चौथी रकात में भी आपको 15 बार ये तस्बीह पढ़नी होगी जो अभी हिंदी में हमने लिखी थी। ये तस्बीह आपके सामने लिखी हुई, ये 15 बार पढ़नी होगी। उसके बाद एक बार सूरे फातिहा आपको पढ़नी होगी जैसे कि सूरे फातिहा ये लगी हुई है। उसके बाद कुरान पाक की जो भी आपको सूरे याद हो वो सूरे पढ़ लीजिएगा, एक बार इसमें मिला लीजिएगा। उसके बाद 10 बार फिर से आपको ये तस्बीह पढ़नी जो स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, ये वाली तस्बीह फिर से आपको 10 बार पढ़नी है। अगर आपको पूरी याद है पूरी पढ़ लेनी, तो वरना जो स्क्रीनशॉट में जितना लिखा हुआ है इतना भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना पढ़ेंगे तो जल्दी आपकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो वरना आप पूरी भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने जैसे रुकू और सजदे में सेम टू सेम अभी पढ़ा था, सेम टू सेम यहाँ पर भी आप पढ़ दीजिएगा रुकू और सजदे में। फिर उसके बाद आप कायदे में बैठ जाइएगा। कायदे में बैठ जाने के बाद अत्तहियात आपको ये आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिए, ये एक बार अत्तहियात आपको पढ़ लेनी होगी। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी हर मुसलमान भाई बहन को याद होती है, तो दुरूद इब्राहिमी हमने ये लगा दी, आपकी स्क्रीन पर ये लगी हुई दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दुआए मासूरा ये देखिए आपके सामने मैंने लगा दी, ये दुआए मासूरा है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। सब कुछ इतना पढ़ने के बाद आप सलाम फेर लीजिएगा। सलाम फेरने के बाद यहाँ पर आपकी नमाज हो जाती है कंप्लीट, यानी कि आपने पूरी तरीके से सही मुकम्मल तरीके से नमाज को अदा कर लिया। क्योंकि मैंने इसलिए बताया कि ये स्क्रीनशॉट लगवा, क्योंकि बार बार पढ़ाने में वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो इतनी देर पब्लिक रुकती नहीं है, वो सुनती नहीं है, तो जल्दी जल्दी शॉर्टकट में ही समझना चाहते हैं आप लोग। तो जहां मैंने बोला कि स्क्रीनशॉट लगवा है 15 बार 10 बार, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने हिंदी में आपको समझा दिया। अब इस नमाज के फायदे क्या है और इस नमाज को किस दिन और किस वक्त में पढ़ा जाएगा वो जरा सुन लीजिएगा। देखिए ये जो नमाज है ना 4 रकात पढ़ी जाती है और इसमें कुल जो तस्बीह पढ़ी जाती है वो 75 बार पढ़ी जाती है। 75 का मतलब हो गया यानी कि 300 बार, इसको कुल मिलाकर 300 बार पढ़ा जाता है। ये स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, इसको 300 बार आप कंप्लीट तरीके से इस नमाज के अंदर पढ़ते हैं। कि रमजान के महीने में अगर इस नमाज को पढ़ा जाता है तो रमजान के महीने में एक नेकी का 70 गुना मिलता है, एक नेकी का 70 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। इसलिए अगर कोई मुसलमान सलातुल तस्बीह की नमाज रमजान के महीने में पढ़ लेता है उस इंसान के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, उसको इंसान को बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। उसके पिछले अगले छोटे बड़े जाने अनजाने में जानबूझकर जो गुनाह किए होते हैं वो सारे के सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं, सारे के सारे
गुनाह अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ फरमा देता है इस नमाज को पढ़ने से। ये जो सलातुल तस्बीह की नमाज है वो किस वक्त में पढ़ी जाती है और किस वक्त में हम नहीं पढ़ सकते, ये दोनों चीजें आपको बता रहा हूँ। किस वक्त में आप पढ़ सकते हो और किस वक्त में आप ये नमाज नहीं पढ़ सकते हो, ये दोनों चीजें जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले हम जान लेते हैं कि हम सलातुल तस्बीह की जो नमाज है वो किस वक्त में नहीं पढ़ सकते हैं। कि सूरज निकलते वक्त पर इस नमाज को नहीं पढ़ा जाएगा। दोपहर के वक्त यानी कि दोपहर का बीच का वक्त होता है ना, उस वक्त में हम इस नमाज को नहीं पढ़ सकते। और सूरज डूबते टाइम पर इस नमाज को नहीं पढ़ा जाएगा। इस नमाज को पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका ये है, यानी कि सबसे बेहतर वक्त ये है रात का समय, तहज्जुद के बाद, जुमे का दिन और रमजान का महीना। रमजान में इस नमाज को पढ़ने का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है, तो रमजान के महीने में इस नमाज को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और कोई भी अगर मुश्किल है, इंशाल्लाह वो मुश्किलें हल होती चली जाती हैं, गुनाह माफ होते। सबसे बड़ा तो हमें फायदा ये मिलता है कि हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं, क्योंकि गुनाह जब हमारे ख़त्म हो जाएंगे, गुनाह हमारे मिट जाएंगे, गुनाह हमारे माफ़ हो जाएंगे, तो हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलेंगे दुआ के लिए, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। क्योंकि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? क्योंकि गुनाह हमारी दुआओं को कबूल नहीं होने देते। हम दुआ मांगते हैं लेकिन गुनाह दुआ के बीच में आ जाते हैं। गुनाह जो है हमारे वो दुआ के बीच में आ जाते हैं और वो दुआ कबूल नहीं हो पाती है। तो सबसे बड़ा जरिया यही है कि इस नमाज को पढ़ने का कि हम अपने गुनाहों को माफ़ कर लें, हम अपने गुनाहों को माफ़ करा लें अल्लाह से। इस नमाज को अगर हम रमज़ान के महीने में पढ़ लेते तो हमारे इंशाल्लाह छोटे बड़े जाने अनजाने में या फिर जानबूझकर या फिर हमसे भूल चूक में जो गुनाह हो गए हैं, अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। रमज़ान का महीना चल रहा है, एक नेकी का बदला 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इस नमाज को पढ़कर बेशुमार सवाब मिलता है। रहमत के दरवाजे अल्लाह ताला उस बंदे के लिए खोल देता है जो बंदा रमज़ान के महीने में इस नमाज को बिल्कुल सही तरीके से, मुकम्मल तरीके से पढ़ लेता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये सुनहरा मौका है। रमज़ान का महीना हमारे हाथ से जाने वाला है, तो इस रमज़ान के महीने में जितना वक्त हमारे पास बचा है उस वक्त में हम इस नमाज को एक बार ज़रूर पढ़ लें। यानी कि चाहे हफ्ते में एक बार पढ़ लें, महीने में एक बार पढ़ लें, या साल में एक बार पढ़ लें, या फिर ज़िंदगी में अपनी एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो अपने भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त जितने लोग हैं, यानी कि नफ़रतें छोड़कर ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी एक भाई बहन ने भी इस नमाज पर ध्यान दे लिया और इस नमाज को आसानी से पढ़ लिया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको दुनिया और आखिरत में बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि आपने वीडियो को शेयर किया, वीडियो उस इंसान तक पहुँचा, उस इंसान ने इस वीडियो को देखा, इस देखकर उसके दिल में नमाज की मोहब्बत जागी और उसने इस नमाज को पढ़ा, अल्लाह से दुआ मांगी, उसने अपने गुनाहों की माफ़ी की दुआ मांगी, तो उसमें आप भी शामिल हो गए, क्योंकि आपने उस वीडियो को उस तक भेजा, उसके दिमाग में आ गया कि भाई अब इस नमाज को पढ़ना है। तो वीडियो को आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वजीफ़ा पावर चैनल पर इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल से आज ही जुड़ जाइएगा। वजीफ़ा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके अपने फ़ोन में ज़रूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।